কোনো কোশ্চেন হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম? হ্যাঁ এটা হোমওয়ার্ক ছিল না? হ্যাঁ স্যার। সবাই পড়েছো? সবাই এটা পড়েছিলেন 11 to 15? হ্যাঁ স্যার পড়েছি। আনসার গুলো একবার বলে দিই, যদি না হয় তার ম্যাচ না করলে আমাকে বলবে, আমি সলভ করে দেবো। 11 এরটা মেবি অপশন নাম্বার 4 এসেছিল, তাই তো? 12 এরটা অপশন নাম্বার 3, 13 এরটা অপশন নাম্বার 2, 14 এরটা অপশন নাম্বার 1, 15 এরটা অপশন নাম্বার 1। বলো পার্টিকুলার কোনো স্যার কোশ্চেন, আমি এক এক করে বলো, আমি বলে দিই। হ্যাঁ বলো। স্যার এই 15 একটু ডিসকাস করবে। 15 টা কি দিয়েছে? g @_ d, মানে g less than equals to d, ddf মানে d is equals to f, f star v মানে f is greater than v। এটা মার্চ কর, তাহলে মার্চ করলে কি পাবি? g is less than equals to d, d is equals to f, f is greater than v। ঠিক আছে? সো ফার্স্ট ওয়ান, হ্যাঁ d @ মানে কি লেস দেন, আর f equals to g। তাহলে তুমি দেখো v আর d এর মধ্যে কোনো রিলেশন এখানে আছে? d থেকে v তে যাবে, তাহলে d গ্রেটার দেন v, এটা ট্রু। বা আমি এটা লিখতে পারি v ইজ লেস দেন d, এটাও ট্রু। ফাইন, তাহলে কনক্লুশন নাম্বার 1 টা রাইট হবে, হ্যাঁ তাই না? কে বড় কে ছোট, d v কে মারছে, তাহলে d বড় v ছোট। আমাকে এখানে তাই বলছে, d বড় v ছোট। আর স্যার ঠিক আছে। f আর g এর মধ্যে রিলেশন আছে, f থেকে g তে যাবে, নকর y, প্রায়োরিটি কে পাবে? y পাবে, বাই। তাই তো? হ্যাঁ মানে f is হ্যাঁ greater than g, এটা রাইট হওয়া উচিত, বাট আমি এখানে f equals to g লিখেছি, ওই জন্য এটা রং। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আর কোনো কোশ্চেনে ডাউট আছে? দেখো স্যার 12 এরটা একটু বলবেন? 12 এরটা ওটা আমার 4 নাম্বার অপশন নাই, যে নাই আইদার অর এর যে সেটা না, ওটা 3টে অপশন ঠিক আছে, 4 নাম্বার অপশনটা আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমি ঠিক ধাতস্থ হতে পারছি না। ঠিক আছে, আমি দেখে নিই 12 এরটা একটু সলভ করে নিই। হুম 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 ঠিক আছে ঠিক আছে। স্টার l, k স্টার l মানে k is greater equals to l, t d v equals to r, और l is lesser equals to p। ठीक, पहले इसको हम मार्च कर देंगे तो क्या होगा? k is greater equals to l, l is sorry, s is lesser equals to p, p equals to r। ठीक है, अभी स्टेटमेंट 1 l, कंक्लूजन 1 f l equals to r, और नंबर 2 l स्टार, स्टार माने होচ্ছে ग्रेटर देन r। ठीक, चलिए यहाँ पर R2L जाने के लिए प्रायोरिटी किसको मिलेगा? R2L जाने के लिए प्रायोरिटी इसमें किसको मिलेगा? R2L जाने के लिए बोलो, नौकरे वाइफ है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? R इक्वल्स टू L, A ट्रू हो सकता है, एंड सिमिलरली L इज लेसर इक्वल्स टू R, A भी ट्रू होगा। ये सर नो, R बड़ा या बराबर हो सकता है, नहीं तो L छोटा या बराबर हो सकता है, वो दर करेक्ट होगा। ठीक है, तो L और R के बीच में रिलेशन कितना है? आइदर
आर बड़ा होगा एल से, नहीं तो बराबर होगा। ये रिलेशन है एक्चुअली, जो रिलेशन यहाँ से हमको मिला है स्टेटमेंट्स। अभी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर तो प्रायोरिटी हमने नौकर को दिया तो एक गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमने हस्बैंड को प्रायोरिटी दिया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आइदर और चेक करना है ऑलवेज। तो आइदर और का पहला कंडीशन क्या दिया था, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन फॉल्स आ गया, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुआ। कंडीशन नंबर 2 बोलो। कंडीशन नंबर 2 हमने बोले थे दोनों के बीच में एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो एल आर दोनों सेम है, सेटिस्फाई हुआ। थर्ड कंडीशन क्या दिए थे, बिटवीन टू कंक्लूजन एक इक्वल्स टू सिंबल आना चाहिए, तो यहाँ पर एल और आर के बीच में इक्वल्स टू सिंबल है, सेटिस्फाई हुआ। 4 नंबर वाला कंडीशन, 4 नंबर वाला कंडीशन पहले हम बता देते, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। क्या दिया था, बिटवीन टू कंक्लूजन इफ वन इज assumed to be wrong, between two conclusion if one is assumed to be wrong, then second one is definitely true and vice versa, then second one is definitely true and vice versa। ठीक है, फाइन, चलिए इसको चेक करते हैं। तो दोनों कंक्लूजन मेरे पास अवेलेबल है, एक L इक्वल्स टू R और एक R इज ग्रेटर देन L। हमने इनमें से कोई भी एक को एज्यूम कर लेना है, एक गलत। मान लो हमने एज्यूम कर लिया R कभी L से बड़ा नहीं होगा, चलो यही वाला एज्यूम किया, R कभी L से बड़ा नहीं होगा, तो मेरे पास रिलेशन R और L के बीच में दो था, आइदर R बड़ा होगा L से, नहीं तो इक्वल होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई होगा। तो R L से बड़ा नहीं होगा तो ए वाला रिलेशन R और L के बीच में और नहीं रहेगा, तो जो रिलेशन बचा हुआ है वो कौन सा रिलेशन बचा हुआ है, देखो L और R दोनों बराबर हो जाएगा, ये रिलेशन यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक ना। तो R L से बड़ा नहीं होगा तो डेफिनेटली L और R बराबर हो जाएगा। क्यों, तो मेरे पास ऑप्शंस दो ही है, R L से बड़ा नहीं होगा तो बराबर होना चाहिए, या वाइस वर्सा में R और L इक्वल नहीं होगा तो R क्या हो जाएगा, L का ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तुम 1 को एज्यूम करोगे 1 इज रॉन्ग तो 2 डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा, और 2 को एज्यूम करोगे 2 इज रॉन्ग तो 1 डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इन दैट केस कंडीशन नंबर 4 इज आल्सो सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर हम आंसर आइदर और लिख सकते हैं, आइदर 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। क्लियर, कोई डाउट और? না স্যার, ঠিক আছে। স্যার, হ্যাঁ স্যার বলছি 14 এরটা যদি একটু বলেন। ওটা 14, হ্যাঁ 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 14 কি আছে, P star P is greater equals to R, R at the rate S, R is lesser than S, S at the rate underscore W, S is lesser equals to W। इटाके मार्च कर दाओ, मार्च करोगे तो क्या मिलेगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं P is greater equals to R, R is lesser than S, S is lesser equals to W। लिखा। Conclusion number 1, W is greater than R, sorry, R is greater equals to W। ठीक है, तो यहाँ पर W और R के बीच में क्या रिलेशन है, W to R तुम जा सकते हो, चेक करके बताओ शिलाजीत क्या आंसर आएगा, प्रायोरिटी किसको मिलेगा बताओ, W के बाद कौन है, तो वाइफ एस, हाँ हस्बैंड, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, हाँ W हस्बैंड R, तो यहाँ पर आर, R मेंशन किया, दैट मींस 1 बना, हाँ करेक्ट। हाँ हाँ और R और W के बीच में रिलेशन, तो R और W के बीच में हमने एक बार चेक कर लिया W बड़ा है R से, तो इसको हम डेफिनेटली नहीं लिख सकते, तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है सर। ओनली कंक्लूजन 1 is true। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू। और कोई डाउट বলো, আইদার ওরে আর কোনো প্রবলেম হচ্ছে, বাড়িতে প্র্যাকটিস করেছো তাতে কোনো ডাউটস এসেছে? না স্যার। চলো এবারে আমি একটা কোশ্চেন দেবো, সবাই যেন এটা ঠিক আনসার করে, এই কটা কোশ্চেন করি আমি পরের চ্যাপ্টারে যাব, এটাকে করো, বেশি টাইম নেবে না পরীক্ষায়, কিন্তু এটা করার জন্য 3 মিনিটের বেশি টাইম তোমরা পাবে না, এটা মনে থাকে যেন। যত টাইম ইনইকুয়ালিটিতে কম নেবে, যেখানে টাইম বাঁচানো যায় সেইগুলো থেকে টাইম সেভ করতে হবে, ওগুলো আমরা পাজেলে ইউজ করব।
चलो
একসাথে 16 to 20 এর आंसर একসাথে পাঠাবে। तुम आंसर सेंड करो सुरभि, 16 to 20 का आंसर एक साथ लिख के सेंड करो पर्सनल चैट में मेरा। অনন্যা 16 টা ভুল হয়েছে, 18 ভুল হয়েছে, 20 ঠিক আছে, 19 ভুল হয়েছে। 16 18 19 রং অনন্যা। ঠিক আছে স্যার, দেখছি আমি। একদম 16 এরটা তোমার ভুল এসেছে, 17 রং, 19 এরটা রং। চলো চেক করতে, আর টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না, তোমাদেরকে অনেক টাইম দিয়েছি। फर्स्ट वन P copyright Q, तो P is copyright मतलब neither greater than nor equals to, मतलब less than, ठीक, less than equals to, this one is equals to, this one is neither smaller than nor equals to, छोटो ना equal ना माने greater, this one is in greater equals to, कन्वर्ट हो गया।
तो यहाँ पर आ जाते हैं पी ई বল সরি মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করছি, বলছি আমি পাঠিয়েছি, আমারটা একটু বলে দেবেন যে ঠিক না ভুল আছে, বলে দিন, তারপর আমি শুনছি আপনারটা। 16 টা ভুল, 17 ভুল, 18 টা রাইট, 19 ভুল, 20 রাইট। ওকে ওকে ঠিক আছে। কোথায় ছিলাম? p copyright underscore q, p less than equals to q, q greater equals to m और m is lesser equals to t। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं p is less than equals to q is greater equals to m is less than equals to t। ठीक है, तो এখানে তোমাদের কি হবে বলো? এখানটাই তোমাকে বলেছে কনক্লুশন নাম্বার 1 p is greater than t, কনক্লুশন নাম্বার 2 সরি হ্যাঁ 2টা কি বলেছে না, কনক্লুশন নাম্বার 1টা বলেছে p is lesser equals to t আর p is greater than t। তো ইন দ্যাট কেস এটা আইদার অর হবে। কেন হবে আমি এটা বোঝাচ্ছি। मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था, p is lesser equals to q greater than m lesser equals to t। कंक्लूजन नंबर 1 में हमको बोला था p is lesser equals to t, नंबर 2 में बोला था p is greater than t। तो यहाँ पर देखो p और t के बीच में ऑपोजिट सिंबल है तो यानी p और t के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा, p और t के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा। दैट मींस एज्यूम कर लो ऐसे करके जो p का भी एज तुमको पता नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा है, t का भी एज तुमको पता नहीं है, तो दोनों बंदे के बीच में एज का हम कंपैरिजन करेंगे तो पॉसिबल रिलेशन क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बताओ पॉसिबल रिलेशन। आइदर p बड़ा होगा t से, नहीं तो p और t इक्वल हो सकता है, नहीं तो p छोटा होगा। These three are possible relation between two unknown person। এই জায়গাটা বুঝলে কিনা বলো তো? क्यों ऐसा सिनेरियो अराइज हुआ ना सर, p और t के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन तुमको पता नहीं है। डेफिनेट मतलब क्या होता है, जैसे ऐसा रिलेशन होता तो यहाँ पर p और t के बीच में डेफिनेट रिलेशन तुमको पता है, जो p greater equals to t is correct from this statement, that is your definite relation। this one is an imaginary case जहाँ पर p और t का पॉसिबल पोजीशन को, पॉसिबल रिलेशन को हमको इमेजिन करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी आइदर और का केस में आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है तो दोनों फॉल्स हो जाएगा। आइदर और का पहला कंडीशन क्या था, जो बोथ द कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, सेटिस्फाई हुआ, एलिमेंट दोनों में सेम है, सेटिस्फाई हुआ। नंबर 3 देखो एक इक्वल्स टू होना चाहिए, एक इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेसर इक्वल्स टू तुमको दिखाई दे रहा है, तो इक्वल्स टू वाला सिंबल हमने बोला था 3 सिंबल सेटिस्फाई करेगा, आइदर ओनली इक्वल्स टू या ग्रेटर इक्वल्स टू या लेसर इक्वल्स टू। इन तीनों में से कोई भी एक सिंबल, इन दो कंक्लूजन में से कोई भी एक जगह पर आ जाएगा ना, तो आइदर और सेटिस्फाई हो जाएगा, याद रखना है चीज। ठीक, नेक्स्ट हम 4 नंबर केस में आ जाते हैं। 4 नंबर वाला क्या था, दोनों में से किसी एक को एज्यूम कर लो, दिस वन इज रॉन्ग। तो यहाँ पर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, दो कंक्लूजन है। एक में बोल रहा है p t से छोटा होगा या बराबर होगा, और एक में बोल रहा है p t का बड़ा होगा। तो मान लो हमने एज्यूम कर लिया p कभी t से बड़ा नहीं हो सकता, एज्यूम दैट दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन और p और t के बीच में नहीं रहेगा, तो कौन सा रिलेशन बचा हुआ है अभी, p equals to t, सॉरी p equals to t and p lesser t। इन दोनों रिलेशन आएगा डेफिनेटली। p t से बड़ा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, आइदर बराबर या तो छोटा। वही चीज देखो हमको नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, आइदर छोटा या बराबर। तो 4 नंबर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं,
सिमिलरली तुम यही वाला एज्यूम कर लोगे कि p छोटा और बराबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ये जो दो रिलेशन था ये चला जाएगा, तो बच्चा क्या रहेगा, p t से बड़ा ही होगा, देन ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस आंसर इज आइदर और। देखो तो এই জায়গাটা বুঝলে কিনা ভালো করে দেখো, that is called imaginary case and this one is definite case। বুঝলে কিনা গো, তাহলে 18 এর আনসারটা কেন আইদার অর হবে সেটা ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে সরি 18 না 16 টা, তাহলে 16 এরটাও এরকম পসিবল কেস আছে এন্ড 18 ও বোধহয় একই আছে। 16 অপশন নাম্বার 3, कोई डाउट 16 में है? 17 টা চেক কর, 17 কয়েকজনের ভুল এসেছে। 17 কি আছে দেখ, m is less than n is lesser equals to r, मार्च करने के बाद यही मिलेगा हमको, जिसमें बता दिया गया r is greater equals to m और एक में बोला r is greater than m, तो इन दैट केस r to m जाने के लिए प्रायोरिटी किसको मिलेगा, वो नो वाइफ है, हस्बैंड है, प्रायोरिटी मिलेगा हस्बैंड को, तो कंक्लूजन 2 करेक्ट होगा, 1 इज फॉल्स, तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 18 आ जाओ, 18 सेम केस में भी m is lesser equals to r, मार्च करने के बाद r equals to p is lesser equals to q। ठीक है, अभी यहाँ पर m equals to q और एक में बोला गया m is greater than q, this sorry q is greater than m और m equals to q, तो यहाँ पर देखो q to m जाना है, ध्यान से देखो q to m जाने के लिए प्रायोरिटी किसको मिलेगा बताओ, जल्दी बताओ। क्यू से। हैं बोलो बोलो बोलो, वाइफ আছে Q, নরমাল Q। আছে, প্রায়োরিটি কে পাবে ওয়াইফ, ইফ ওয়াইফ পাবে। তাহলে q is greater equals to m এরকম ভাবে লিখবি, মানে q বড় হবে বা এটাও লিখতে পারিস q is greater equals to m, তাহলে that is definite case, है ना, that is definite case जहां पर q और f के सॉरी q और m के बीच में कंफर्म रिलेशन तुमको पता है। ठीक है, अभी यहां पर आ जाओ, कंडीशन नंबर 1 q ग्रेटर देन होगा m का, रॉन्ग, q और m बराबर होगा, a भी रॉन्ग, क्यों ना, प्रायोरिटी तो हमने वाइफ को देना है, लेकिन यहाँ पर नौकर और हस्बैंड को प्रायोरिटी दिया, दोनों फॉल्स। अभी आइदर और चेक करोगे तो जो लोगों का 18 वाला आंसर गलत हुआ था देख लो, बोथ द कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, सेटिस्फाई हुआ, नंबर 2 बोथ हैव द सेम एलिमेंट, सेटिस्फाई हुआ, नंबर 3 बिटवीन टू कंक्लूजन एक इक्वल्स टू होगा, सेटिस्फाई हुआ, नंबर 4 ना एक को एज्यूम कर लोगे, जो हमने एज्यूम कर लिया q कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, तो q और m क्या हो जाएगा बराबर, तो सेटिस्फाई हो गया, इन दैट केस आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 19 এটা চেক করো, 16 এর মতো করে হবে, 19 का कंक्लूजन क्या होगा, r is greater than b is lesser equals to m। ठीक है, in that case r is greater than m, in that case r is lesser equals to m। देख लो इमेजिनरी केस आएगा, 3 सिंबल है, ग्रेटर देन लेसर इक्वल्स टू, सेटिस्फाई हो गया, इन दैट केस आंसर इज 19 का ऑप्शन नंबर 3। 20 का बोथ द कंक्लूजन इज करेक्ट, क्या होगा 20 में कंक्लूजन क्या होगा, b is less than k is less than m is less than z। ठीक है, in that case this one is less than and in that case this one is greater than, तो both are correct, the answer is option number 5। স্যার बोलो স্যার বলছি 19 এর 1 এর কনক্লুশনটা তো রাইট হচ্ছে, কি করে রে, ওই তো আর বি আর এম, তো এবার গ্রেটার দেন আছে, তাহলে হাজবেন্ড আর ওয়াইফ এর মধ্যে তো হাজবেন্ডটা প্রায়োরিটি পাবে, তাহলে তো কোথায়, এটা অন্য বাড়ির ওয়াইফ, ফ্ল্যাট নাম্বার 1 এর হাজবেন্ডের সাথে ফ্ল্যাট নাম্বার 2 এর ওয়াইফের কোনো লিগ্যাল রিলেশন হবে, তুই ভেবে চিন্তে বল, ও তাই না? উল্টো সাইন আছে উল্টো ওই sign জন্য না, হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। দেখে নাও, কোনো ডাউট থাকলে আবার আস্ক করো, আমি বলবো, আগে ভালো করে বুঝো তারপরে জিজ্ঞেস করবে কোশ্চেন।
প্রীতম তোর যা ডাউট ছিল ক্লিয়ার হলো? যারা যারা ভুল করেছিলে, প্রীতমের আনসার ভুল হয়েছিল, আরো অনেক হ্যাঁ হয়েছে, ঠিক আছে স্যার। আর যেন ভুল করবে না। এগুলো কিন্তু ফুল মার্কস করার চ্যাপ্টার, এইসব চ্যাপ্টার গুলো এখান থেকে যদি মার্কস তোমার কাটা যায় তাহলে তুমি স্কোরই করতে পারবে না রিজনিং এ। আসলে স্যার 16টা আর 19 স্যার অ্যাজিওম মেথড বুঝতে পারিনি ওটা প্রথমে। বুঝিয়ে দিলাম, আশা করবো আর যেন কারোর ভুল না হয়। বলো আর কোই ডাউট কারোর? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে তো? চলো তাহলে হ্যাঁ স্যার। ইনইকুয়ালিটি ডান, ইনইকুয়ালিটি কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আমরা আজকে ডাটা সাফিসিয়েন্সি স্টার্ট করি।